most of the students do not exactly understand executive MBA in India, especially the fact that whether they should be choosing and at which stage of their career they should be choosing executive MBA. काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 4-5 years work experience हो गया तो अब regular MBA नहीं, we should go for an executive MBA program and that is the only condition. But that is not the only condition. At which stage you are in your career, that determines whether you should go for an executive MBA program or not. And in this video, we are going to discuss everything. I will explain exactly the things, the pros, cons of executive MBA. At the same time, you will be able to make a decision whether you should go for a regular MBA program or an executive MBA program from India. So first of all, you have to be clear about the different categories of executive MBA programs, starting with the full-time executive MBA programs. ये residential on campus programs होते हैं where you leave your job, you join the college and you are spending full time on this particular program. So you are studying but you're not working alongside and you're not pursuing any other activity alongside your studies. A popular example is IIM Ahmedabad's PGPX program. और भी IIMs के होते हैं like I think IIM Bangalore का EPGP program है and other IIMs also have kind of full-time executive MBA programs. So this is one category. Another category is part-time executive MBA programs which happen offline. So या तो आपको Friday और weekends में you have to visit that particular campus, वहाँ पर weekend classes किए जाएंगे and rest of the week there would be assignments or something, but it would be part-time. So you can pursue it along with say other courses or you can also pursue it along with your work. And एक और होता है part-time online MBA program. So again, this is the same concept as the offline MBA, just that you don't have to visit the campus. You might have to visit a campus maybe once a quarter, that's maximum of that is required, but most of that happens online. So Saturday, Sunday there would be classes, or after 6 p.m. after your work there would be classes, and most of it you can pursue it from any city. So you don't have to be necessarily be from the same city to pursue this, because like I'm Bangalore का एक weekend program होता है, but you have to be obviously in Bangalore because every weekend you cannot travel to Bangalore, it will be very expensive for you. So उसमें आप online MBA prefer कर सकते हो, especially अगर कोई particular ऐसा MBA program नहीं है जो आपकी city में provide किया जाता है. And some of the popular programs include IIM Ahmedabad's BPGP program है, so कुछ months आप campus में रहते हो and some of it happens online, so kind of hybrid program है, most of it is online only. उसके बाद IIM कोइकोड का भी एक program है, that is EPGP program. IIM Bangalore का PGPEM program भी है. So these are some of the popular executive MBA programs that happens either full time या फिर online या फिर offline over weekends. इसके बाद eligibility condition is something you should definitely understand. Eligibility condition, yes, most of the executive MBA programs have a criteria that you should have 4-5 years of experience. ज़रूरी नहीं है ये 4-5 years ही हो, कुछ MBA programs में within 2 years also they take candidates, especially जो online executive MBA programs होते हैं within after 2 years of experience also they accept it. However, अगर standard पूछो तो 4-5 years of experience ही रहता है, but इसका मतलब ये नहीं है just because you are eligible for executive MBA after 4-5 years of experience you should pursue executive MBA program only rather than a regular MBA program. Both of them fulfill very different needs and I will tell you about that later. Eligibility complete कर लेते हैं. For most of the programs again GMAT GRE are standard tests जो आप conduct किया जाता है. Regular MBA के लिए वो CAT होता है, but mostly for executive MBA program it's GMAT GRE. However, apart from GMAT GRE, most of the institutes also conduct their own assessment test. उसके बाद interview तो obviously you have to appear for, but most of the institutes also have their own assessment test apart from GMAT GRE. So अगर आपने GMAT और GRE नहीं दिया है, आप institute का test दे दो and that will also be considered. And अब आपको धीरे धीरे regular MBA and executive MBA के बीच में differences समझाने लगता हूँ so that you understand what is the right fit for you. अगर मैं regular MBA का बात करूँ, placement usually कहाँ पर होता है after a regular MBA from India? Usually you start from a junior entry level or a mid level role, mid level manager role तक you enter after a regular MBA program, because that is a typical age where students enter. 24-25 average age होता है इंडिया में for most of the MBA colleges. तो इसलिए usually entry level या फिर mid level roles में आप join करते हो. But for executive MBA programs you usually end up in the mid level or a senior level managerial position. So mid level में जाओगे या फिर senior level managerial positions में जाओगे. But इसका मतलब ये नहीं है कि regular MBA से better हो गया executive MBA program, because there's a lot of difference in the kind of salary, the kind of companies that will come for a regular MBA as well as an executive MBA program. आप जाते तो हो, फॉर एग्जाम्पल IIM अहमदाबाद का ही केस ले लो. अगर आप जाते हो फॉर अ रेगुलर MBA प्रोग्राम विच इज़ देयर फ्लैगशिप कोर्स, एवरेज पैकेज होता है ऑलमोस्ट
33, 34, 35 lakh एवरेज पैकेज होता है, एंड यू एंटर एंड एंट्री और मिड लेवल रोल, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर बेटिंग ऑलरेडी ऑन योर फ्यूचर. बहुत डिफिकल्ट है एक रेगुलर MBA प्रोग्राम में जाना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट. Obviously it means that you have cleared certain filtering criteria, and the companies understand that, and they are placing bet on their future. Starting salary देते हैं 34-35 lakh, even if it's an entry level role. Management trainee role होता है, काफ़ी बार analyst role होता है, but after that, after a couple of years, if you can expect like 5-6 years बाद अगर आप वो salary देखोगे, it usually exponentially jumps to 70 lakh, 80 lakh कुछ consultants earn करते हैं. Even for other roles, say marketing, general management roles as well, वो 50 lakh तक चला जाता है. Usually after 5 years, most of the candidates from a regular MBA program of IIM Ahmedabad would be earning above 50 lakh. And एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी apart from placement, that is the brand value of the tag that you're getting into. For example, अगर आप regular MBA करने जाते हो, the brand, the tag of the college, that matters a lot. Yes, it does matter a lot. IIMs हो या फिर tier 1 institution हो, top 20, top 25 colleges हो, it does matter a lot. However, in case of executive MBA programs, शायद जो brand value है, tag, वो थोड़ी कम matter करती है. Rather what matters is what your profile looks like, your knowledge and everything. Because the kind of role that you will be entering it, company आपको बहुत ज़्यादा नहीं सिखाने वाली है. For a regular MBA program, company knows that you शायद आपको कुछ नहीं पता होगा and आपको बिल्कुल वो अच्छे से train करेगी. But executive MBA program के बाद companies are expecting to hit the ground on day one. सो दैट्स वाई शायद वो ब्रांड वैल्यू जो है वो कम मैटर करती है, एंड जो ज़्यादा मैटर करती है वो आपकी प्रोफाइल एंड ओवरऑल स्किल्स. Whereas for a regular MBA, yes, brand value of the college matters a lot. And before I go to the next difference, let me tell you here, just जब हम brand value का बात कर रहे हैं, if you are pursuing an online executive MBA program, then obviously brand value इतना मैटर नहीं करती है, बट आपके स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं. एंड एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू हैव टू मेक श्योर दैट दैट पर्टिकुलर डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. बिकॉज ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो दैट आर ऑफरिंग दीज काइंड ऑफ कोर्सेज, बट शायद वो कोई सर्टिफिकेशन या फिर रिकग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफर नहीं करते हैं. एंड दैट इज वेयर द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो विल कम इन वेरी हैंडी, हु विल हेल्प यू फाइंड दीज रिकग्नाइज गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम वेयर यू कैन परस्यू ऑनलाइन MBA प्रोग्राम्स, ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स, एंड दैट इज कॉलेज विद्या. सो कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड होते हैं. यहां आप 100 ऑप्शन से कंपेयर कर सकते हो 30+ फैक्टर्स पर, दैट इज योर फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, कोर्स कंटेंट, रैंकिंग्स, इवन EMI ऑप्शंस, सब कुछ एक जगह. एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो बायस, ओनली फैक्चुअल एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल बी शोन. एंड फ्रॉम कॉलेज विद्या यू कैन ऑल्सो गेट फ्री करियर काउंसलिंग सेशंस जिसमें एक्सपर्ट्स तुम्हारी प्रोफाइल देखकर सजेस्ट करते हैं द बेस्ट कोर्सेज एंड द यूनिवर्सिटीज फॉर यू. एंड एडमिशन के बाद भी यू कैन गेट फुल सपोर्ट लाइक वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रेप, प्लेसमेंट गाइडेंस एंड एवरीथिंग एल्स. एंड एन एक्साइटिंग पार्ट इज अगर आप कॉलेज विद्या से एडमिशन लेते हो, यू कैन गेट अ सब्सिडी ऑफ अप टू 20,000. So I'll put the link in the description as well as in the pinned comment. You can check it out from there. And अब coming back to regular versus executive MBA programs. So आपको अगर अभी तक नहीं समझ में आया किसको क्या pursue करना चाहिए, your criteria for entering a particular program should not be your years of experience. Rather, it should be in what role are you willing to enter. For example, अगर आज आप जिस role पे हो, you want to completely switch your career and you think that आपको जो role मिलेगा शायद वो mid manager से ज़्यादा ऊपर नहीं मिल सकता, and either entry level मिलेगा उस प्रोफाइल में या फिर मिड मैनेजर रोल ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वेर इन अ वेरी काइंड सपोर्ट काइंड ऑफ अ रोल एंड नाउ यू वांट टू एंटर से अ कंसल्टिंग और अ वेरी गुड मार्केटिंग रोल. शायद यू वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्री लेवल इटसेल्फ, एंड उसके लिए ऑब्वियसली द रेगुलर MBA प्रोग्राम इज बेटर. हाउएवर, इफ यू थिंक दैट यू ऑलरेडी हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन अ काइंड ऑफ अ मैनेजरियल रोल एंड शायद मिड मैनेजर लेवल रोल या फिर सीनियर मैनेजमेंट लेवल रोल इज द वन विच इज सूटेबल फॉर यू, देन ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम इज समथिंग यू शुड बी एंटरिंग. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज अगर आपको जॉब छोड़ना है या फिर नहीं, ऑलरेडी यू हैव 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस, हो सकता है देयर आर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, सो फाइनेंशियल नीड भी है दैट यू हैव टू कीप अर्निंग थ्रू आउट द पीरियड ऑफ योर एजुकेशन. सो अगर वो नीड है देन ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव MBA बिकम्स अ बेटर ऑप्शन बिकॉज पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स आर रिस्पेक्टेड ऑप्शंस. हाउएवर, फॉर रेगुलर MBA मोस्टली वो फुल टाइम MBA प्रोग्राम्स होते हैं जिससे आप फुल बेनिफिट ले सकते हो. इसलिए फॉर रेगुलर MBA प्रोग्राम्स मोस्ट लाइकली
likely you have to leave your job, you have to go to the campus, and that's why you won't be earning during the period. So placement जैसा भी मिले आपको, but for those 2 years you won't be earning. So अगर वो responsibilities है आपके ऊपर, then obviously executive MBA program is something you might be preferring, a part-time MBA program जहाँ पर आप executive MBA कर भी रहे हो, you are working in the same company, and after the end of the executive MBA program either you switch the company या फिर सेम ही कंपनी में you apply for the senior management level roles. And एक और केस होता है where the companies themselves sponsor executive MBA for their employees. So अगर आप लोन नहीं लेना चाहते, financial burden में नहीं जाना चाहते, you can ask your companies to sponsor the executive MBA program for you. एक kind of bond period रहता है where you have to return the money, या फिर 2-3 years का bond होता है कि आप executive MBA program करने के बाद भी उस कंपनी के साथ रहोगे. Most of the companies have this kind of a thing, but they encourage employees to take this executive MBA program. वो आपकी रेगुलर MBA शायद फंड नहीं करेंगे, बट एग्जीक्यूटिव MBA अ लॉट ऑफ कंपनीज हैपन टू फंड द एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स फॉर द एम्प्लॉइज. सो अगर कॉलेज या फिर आपकी जो कंपनी है वो स्पॉन्सर कर देती है कॉलेज का फीस, देन इट्स ऑब्वियसली अ ग्रेट एडवांटेज. स्पेशली अगर आप में वो फाइनेंशियल बर्डन है तो कंपनी ही स्पॉन्सर करेगी, वो सैलरी भी देगी ड्यूरिंग द टेन्योर दैट यू आर वर्किंग देयर. कुछ एक बॉन्ड रहेगा दैट 2-3 years यू विल बी वर्किंग विद द कंपनी, और यू वुड बी रिटर्निंग द मनी इफ यू डू नॉट वर्क फॉर 2-3 years एटलीस्ट आफ्टर द एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम. तो ऐसा बॉन्ड रहता है, बट इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर एनीवन हु इज थिंकिंग अबाउट डूइंग एन एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम विदाउट टेकिंग द फाइनेंशियल बर्डन. इसके बाद फीस भी एक कंसिडरेशन होती है फॉर मोस्ट ऑफ द रेगुलर MBA प्रोग्राम्स. अगर आप फुल टाइम रेगुलर MBA प्रोग्राम करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपकी फीस जाएगी अबव 20 लाख, 15 लाख से ऊपर रहेगी डेफिनेटली. अगर टियर 1, मोस्ट ऑफ द टियर 1 इंस्टीट्यूशंस का बात करो एक्सेप्ट FMS प्रॉबेबली, मोस्ट ऑफ द टियर 1 इंस्टीट्यूशंस विल हैव अ फीस अबव 20 lakhs ओनली. सो डेफिनेटली फीस काफ़ी हाई होती है. बट अगर आप एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम करते हो, दैट इज़ फुल टाइम एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम करते हो, तो फीस तो और भी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू अ रेगुलर MBA प्रोग्राम. बट द एडवांटेजेस कि आप 1 साल वहाँ पर पढ़ाई करोगे, सो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम रहती है कि वहाँ पर आप 2 साल वर्क करते हो, सो 2 years यू आर नॉट वर्किंग इन अ रेगुलर MBA प्रोग्राम. बट इन एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम फीस थोड़ी हाई रहेगी, बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1 year आप पहले अर्न करना शुरू कर दोगे. सो डेफिनेटली दैट्स एन एडवांटेज. बट यूजुअली फॉर द एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम फीस ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू अ रेगुलर MBA प्रोग्राम फॉर द 1 year एजुकेशन दैट यू गेट. बट अगर आप पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम करते हो, देन द फीस विल बी लेसर ऑब्वियसली. अगर आप ऑफलाइन परस्यू करते हो, ऑफलाइन पार्ट टाइम, दैट इज यू गो टू द कैंपस ओवर द वीकेंड्स, देन इट वुड बी समवेयर अराउंड 10 लाख से थोड़ी ऊपर, 10 to 15 लाख रहेगी. बट अगर आप ऑनलाइन परस्यू करते हो, ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम, देन यू विल हैव एन ऑप्शन टू परस्यू इट अंडर 10 lakhs. इसके बाद अगर प्लेसमेंट सपोर्ट की बात की जाए फॉर अ फुल टाइम एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम जहाँ पर आप कैंपस में रह के सीखते हो, दे गेट फुल कैंपस प्लेसमेंट सपोर्ट. दैट इज द कंपनीज कम टू कैंपस, दे आर रिक्रूटेड फ्रॉम देयर ओनली, just like a regular MBA program. However, for part-time executive MBA programs, what you get is what is called a placement support. That is, for example, आप IIM अहमदाबाद के alumni के पार्ट हो गए, so whatever mail chain opportunities जो mail chain में float की जाती है वो आपको भी provide की जाएंगी, so you will be able to pursue those. At the same time, any company that is coming to the campus, अगर वो open करती है for the other programs, that opportunity will be floated for you. But ऐसा कोई बहुत scheduled campus placement नहीं किया जाएगा, because most of the people who come for executive MBA, part-time executive MBA, they are not even looking for placements. They already are working somewhere, so either वो same company में ही चले जाएंगे या फिर they are capable enough to like just navigate their path and find other career options for them. And काफ़ी सारी ऐसे आपके साथ अपॉर्चुनिटीज़ फ्लोट की जाएंगी, बट यू हैव टू अप्लाई फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़ ऑन योर ओन एंड मेक श्योर आप इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाते हो एंड गेट रिक्रूटेड ऑन योर ओन. ऐसी कैंपस प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी कि कंपनीज कैंपस आ रहे हैं एंड यू आर सिटिंग फॉर देम एंड एज लॉन्ग एज योर प्लेस द प्लेसमेंट प्रोसेस कंटिन्यूज. उस तरीके का सपोर्ट आपको फॉर पार्ट टाइम प्रोग्राम्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. सो इसलिए द थिंग इज़, इफ़ यू आर इसलिए अगर आप खुद को सोचते हो कि यू आर केपेबल इनफ टू फाइंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ आफ्टर वर्किंग फॉर 4-5 years, मोस्टली अगर आपको लगता है कि आफ्टर वर्किंग फॉर 4-5 years अगर आप जॉब छोड़ दोगे या फिर कोई और जॉब में जाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, देन ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव MBA, पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम एटलीस्ट इज़ नॉट फॉर यू. बट अगर आपको लगता है यू हैव दैट केपेबल नॉलेज नाउ, यू हैव दैट केपेबल मेच्योरिटी आ गई है कि आप अपना खुद का जॉब ढूंढ पाओगे, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दोज एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम, पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स where you will get placement support but not कैंपस प्लेसमेंट. सो आपको मैं क्विकली कुछ चीज़ें समराइज कर देता हूँ. मान लो आपको कंप्लीट करियर स्विच मारना है, दैट इज यू हैव नेवर वर्कड इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग जहाँ पर आप
प्रॉपर मैनेजर्स एंड हायरार्की हो, एंड समथिंग लाइक मे बी इन अ कॉल सेंटर, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर थे या फ्रीलांसिंग वर्क करते थे, एंड आपको कंप्लीट स्विच करना है टू अ कंप्लीटली डिफरेंट रोल लाइक कंसल्टिंग मैनेजरियल रोल, स्पेशली इन अ कंप्लीट कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, देन शायद यू हैव टू परस्यू रेगुलर एमबीए या फिर फुल टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स। आपके लिए पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स तो डेफिनेटली नहीं है, एंड शायद प्रेफर्ड वुड बी यू गेट इनटू अ रेगुलर एमबीए प्रोग्राम, जहां से आपको एंट्री लेवल या फिर मिड लेवल मैनेजमेंट रोल के लिए लिया जाएगा, एंड यू वुड बी मोर सूटेड टू द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दैट हैपेंस इन अ रेगुलर एमबीए प्रोग्राम एज वेल। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक करियर पाथ है, आप शायद कोडिंग में थे बट यू वांट टू शिफ्ट टू अ मैनेजरियल रोल, बट यू हैव बीन इन दैट काइंड ऑफ फन एनवायरनमेंट जहां पर आपके मैनेजर्स थे, यू हैव सीन देम परफॉर्मिंग, या फिर आप किसी और रोल में थे बट यू हैव सीन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट एंड यू हैव वर्क देयर फॉर 4-5 years, देन यू कैन गो फॉर अ पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम एज वेल। अ फुल करियर स्विच शायद डिफिकल्ट हो, बट विद इन द सेम इंडस्ट्री अगर आप ऊपर जाना चाहते हो अपने ही रोल में, देन द पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। एंड एक और कंसिडरेशन मैंने जो बताया था आपको, अगर फाइनेंशियल कंसिडरेशन है, दैट इज यू कैन नॉट लीव योर जॉब फॉर द 2 years एंड यू ऑलरेडी हैव 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस, देन बेटर देन अ पार्ट टाइम ऑनलाइन रेगुलर एमबीए प्रोग्राम या फिर डिस्टेंस एमबीए प्रोग्राम, उससे बेटर रहेगा कि आप पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम करो, दैट विल ऐड मोर वैल्यू। एंड एक और चीज होता है, आपकी सैलरी क्या है प्रेजेंटली। अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी अबव 20 लाख है, आफ्टर वर्किंग फॉर 4-5 years आप ऑलरेडी 20 लाख के ऊपर अर्न कर रहे हो, देन in case of regular MBA, only IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta या ISB kind of program will make sense for you, not even all the tier 1 institutions, because आप चाहते हो या तो आप एकदम ही टॉप टियर चले जाओ because to get the brand value, या फिर go for an executive MBA program which is more suited for the knowledge that you will get out of it and not necessarily the salary, because काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छी सैलरी तो मिल गई है बट दे डोंट हैव दैट मैनेजरियल स्किल सेट्स जो नेक्स्ट लेवल में उनको ले जाएगा, एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज फॉर गोइंग टू दैट नेक्स्ट लेवल हैव दिस काइंड ऑफ क्राइटेरिया कि आपके पास एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम होना चाहिए, एमबीए डिग्री होनी चाहिए। सो उसके लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम पार्ट टाइम भी कर लो, देन ऑल्सो इट्स सूटेड बिकॉज देन यू आर परस्यूइंग इट मोर फॉर द नॉलेज रादर देन आप यू आर थिंकिंग कि 20 लाख अभी सैलरी है तो एमबीए के बाद तो 30 लाख होनी ही चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ दैट रादर गो फॉर अ पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम, स्किल सेट्स ले लो, मैनेजरियल रोल के लिए क्या चाहिए, दैट इज गुड इनफ। ऑन द अदर हैंड, इवन आफ्टर वर्किंग फॉर 4-5 years अगर आपकी सैलरी आज भी 6 लाख 7 लाख के अराउंड है, then obviously going for a tier 1 regular MBA program will make sense for you। हो सकता है आप जिस रोल में हो वहाँ पर एक काइंड ऑफ कैप हो कि 6 लाख 7 लाख के ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट हो, इनफैक्ट 12 लाख 13 लाख इवन आफ्टर गेटिंग टू अ सीनियर पोजीशन बहुत डिफिकल्ट हो। अगर उस काइंड ऑफ रोल में हो देन ऑब्वियसली गेटिंग इनटू अ टियर 1 रेगुलर एमबीए प्रोग्राम विल मेक सेंस फॉर यू। सो फाइनली अगर मैं कुछ प्रोज बता दूं आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में, तो करियर बूस्ट मिलता है डेफिनेटली, यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, सो दैट हेल्प्स यू गो फ्रॉम मिड मैनेजमेंट टू सीनियर मैनेजमेंट लेवल रोल, सो करियर बूस्ट मिल जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसको विदाउट लीविंग द जॉब एज वेल परस्यू कर सकते हो, एंड पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स आर आल्सो काइंड ऑफ रिस्पेक्टेड, एंड ब्रांड वैल्यू वाइज अगर आप देखोगे, फिल्टरिंग मैकेनिज्म वाइज देखोगे, इट इज नॉट दैट स्ट्रिंजेंट कंपेयर टू अ रेगुलर एमबीए प्रोग्राम। वहां पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है टू गेट इनटू द सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांड, सो एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में इट्स स्लाइटली इजी कंपेयर टू अ रेगुलर एमबीए प्रोग्राम। सो ये कुछ प्रोज होते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स के। एंड कॉन्स में एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम के लिए, अगर आप फुल करियर स्विच करना चाहते हो देन इट माइट बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट इन एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम। आप कंप्लीटली कभी कॉर्पोरेट में वर्क किया नहीं एंड देन यू वांट टू एंटर अ मिड मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट लेवल रोल, तो शायद द कंपनीज विल नॉट बी वेरी विलिंग टू हायर समवन एट अ मिड मैनेजमेंट लेवल रोल हु इज ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेशर, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। सो इफ यू हैव सम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस देन ऑब्वियसली इट मेक सेंस टू गो फॉर एन एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम जहां पर आप फुल एकदम ट्रांजिशन नहीं कर रहे हो अपने करियर में। सेकंड एक होता है कि कैंपस प्लेसमेंट सपोर्ट, तो अगर आप प्लेसमेंट सपोर्ट चाहते हो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट देन इट्स कंप्लीटली फाइन, बट आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर सकते इफ यू डू नॉट गेट अ कैंपस प्लेसमेंट फ्रॉम द कैंपस इटसेल्फ। इन केस ऑफ रेगुलर एमबीए आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स डू पुट द ब्लेम एंटायरली ऑन द इंस्टीट्यूशन, दैट इंस्टीट्यूशन में ही कंपनीज नहीं आते एंड एवरीथिंग दैट कैन हैपन फॉर अ रेगुलर एमबीए प्रोग्राम, बट एग्जीक्यूटिव एमबीए में वो पॉसिबल नहीं है। इट इज ऑलवेज अ प्लेसमेंट सपोर्ट, कैंपस प्लेसमेंट is an option for full-time executive MBA programs, or part-time executive MBA programs वो option भी नहीं होता है। So hopefully I have answered a lot of questions around executive MBA here, and if you still have any doubt you can just comment down below, I'll be happy to address it, and in case you want to understand anything else about MBA programs in India, abroad, anything, then just let me know, I'll be happy to make a video on that as well. So that's it for this particular video, see you in the next one.